नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हैं नेशन माफ कीजिएगा नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर। बिल्कुल सर। 13 दिसंबर 2001 को क्या हुआ था सबको याद है? यस यस यस। और आज क्या हुआ है वो भी सबको मुझे लगता है याद रहेगा काफी देर तक। Everybody is wondering only one thing: how could these guys actually get inside Parliament? How? मतलब पार्लियामेंट में तो जबरदस्त सिक्योरिटी है इस वक्त और नया पार्लियामेंट है साहब। They are equipped with the latest equipment, metal detectors, all sorts of other detectors, pat downs, everything. What happened? I can't really figure out what happened. Can you figure out what It's happened? going to destroy the very myth that Prime Minister Modi has built around him. Yes. Of national security, internal security, and India is in safe hands where security is concerned. ये clear cut है कि a group of determined persons can still penetrate your circuit, and they have penetrated one of the most sterile areas of the country, the Parliament. वहां पर चल. Now this is what Prime Minister Modi, Amit Shah will have. Though the BJP will say it's a local event, but this reflects on the Prime Minister and the Home Minister that a group of determined men, they could have been gunmen. They could have been gunmen. They could have gone with any kind of gas, poisonous gas. These people penetrated the security of one of the most, you can say, secure places where the Parliament is concerned. If they can penetrate that, that means the questions that Congress is posting और जो लगातार मोर्चा धरना प्रदर्शन सब जगह कांग्रेस ने चालू कर दिया है, it shows only one thing, that internal security, national security was being hyped where Prime Minister Modi is concerned, and now he's answerable. And what has perhaps happened is that they, because the borders were secure, because everything was happening on the border, everybody forgot about Parliament. All those people who were stationed in Parliament, the entire special forces or the CRPF Jawans and so on and so forth, who are supposed to be in charge of security in Parliament, they decided to go to sleep. I mean, I don't know if they decided to go to sleep or were they in on it. I don't know. But they have been penetrated. They have been penetrated. I'm not sure if they have been penetrated or they have allowed these guys to go in. I'm reasonably certain they may have been. We have really to consider whether or not some security chap was also in league with them. You know, because I can't believe that 4 people can get inside armed with these canisters and not be detected. You know, they could have, as you said, they could have had guns. Forget guns, they could have had knives, they could have had anything. They could have injured so many parliamentarians, they could have killed so many parliamentarians. Well, there's no explanation forthcoming as yet. The only action which has been taken so far is the visitors gallery is now closed in Parliament. I think that's a knee-jerk reaction, rightfully speaking. It shouldn't have been closed. What should have happened is that the entire security detail should have been changed. I hope it has. And whoso is in charge of security, I hope he or she has been suspended. मुझे उम्मीद है कि जो भी सुरक्षा का इंचार्ज था पार्लियामेंट में आज, मैं उम्मीद करता हूं कि उन सब लोगों को टाटा कर दिया होगा आज, जहां तक मैं समझता हूं. I think. But I haven't heard anything of it. Have you, Pradeep ji? आपको कुछ? Nothing up till now. अभी investigation चालू है sir. Investigation is on. It's going to take some time. Hardened criminals don't break immediately because ये कोई immediate. This has been planned long time back, and they must have done a lot of recce because to know to enter, कहाँ से letter लेना, कौन से MP से letter लेना. By the way, this is अलग-अलग लोग, अलग-अलग प्रांत से. और ये नया संसद है. Exactly. Not the old one. Yes. And they're all from different places. One in Maharashtra, one from Karnataka, अलग from Haryana. Yes. तो अलग-अलग जगह से और सब लोग पार्लियामेंट में आते हैं. And one from Andhra Pradesh. Yes. And then they breach. The security is breached in the parliament. और इस वक्त हमारे साथ हैं. प्लान्ड तरीके से हुआ है. प्रदीप जी इस वक्त हमारे साथ हैं. हमारे बड़े पुराने मित्र बड़े दिनों के बाद हमारे साथ आ रहे हैं. इनको इनफैक्ट उनको जबरदस्ती बुलाना पड़ा आज. मतलब अजीत चौहान साहब नमस्कार. सर नमस्कार. अजीत चौहान साहब आप कहाँ गायब हो गए?
कहाँ गायब हो गए थे हम तो, मतलब हमने सोचा पता नहीं नाराज चल रहे हैं हमारे साथ, क्या हो गया, अजीत चौहान साहब आ नहीं रहे हमारे शो में। दर्शन दुर्लभ। क्या बात है सर, सब खैरियत तो है? हम लोगों से कोई मतलब नाराजगी है तो बता दीजिए सबके सामने, ऐसी बात, आप ही का चैनल है, बोलिए बोलिए। सर सबसे पहले तो एक बात कि जब भी कृष्णा जी का फोन आता है तो आपका आदेश समझ करके हम बिल्कुल तैयार रहते हैं कि हमको आना है। और बहुत दिनों बाद लाइव आप दोनों को देख करके, खास करके सर आज आपका फ्रेश लुक देख करके दिल खुश हो गया। और काफी अलग अलग स्टेट्स में घूम रहे थे, मध्य प्रदेश में मेरा ज्यादा जाना हुआ, तो मैं माफी चाहूंगा कि हम थोड़ा मैं हमारे इंटेलेक्चुअल विंग का स्टेट का प्रेसिडेंट चुना गया हूं, तो उस सिलसिले में कुछ थोड़ा घूमना ज्यादा हो रहा है। और इलेक्शंस थे तो हम हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के भाइयों की मदद करने के लिए वहां पहुंच गए थे, तो थोड़ा सा सर आपकी सेवा में हम नहीं आ पाए जब आपने बुलाया, तो इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी। लेकिन अच्छा अजीत चौहान साहब मुबारक हो, यानी कांग्रेस की हार के लिए आप जिम्मेदार हैं। कांग्रेस का जो आपने सुपड़ा साफ कर दिया मध्य प्रदेश से, चलिए सुपड़ा तो साफ नहीं हुआ, 60 सीट तो आई है उनकी, लेकिन फिर भी किसी की हार पे खुश होना सर हमारे संस्कार नहीं है। हमारी मेहनत पर खुश होकर जनता ने हमारी पीठ थपथपाई है, इसकी मुझे खुशी है। बाकी किसी की हार से खुश होना ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन ये क्या हुआ, शुभकामनाएं दूंगा, उन्होंने भी अच्छी टक्कर। लेकिन ये क्या हुआ सर, ये क्या आज क्या हो गया, मतलब कि देखिए साहब 2021 में, सॉरी 2001 में हादसा हुआ था 16 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को मुझे याद है, मैंने उस वक्त भी शो किया था, पार्लियामेंट में लैप्स हुआ। आज मैं फिर दोबारा शो कर रहा हूँ। व्हाट इज गोइंग ऑन सर, मतलब ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है, खतरनाक चीज़ है। और जैसे प्रदीप जी और मैं अभी बात कर रहे थे, इसमें ये तो इनसाइड जॉब है, अंदर के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं इसमें 100%। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी होगा ज़रूर, कोई सिक्योरिटी का भी कोई शख्स होगा ज़रूर, जिन्होंने इन सब लोगों को अंदर जाने दिया, वरना इट इज़ इम्पॉसिबल। यू नो, पार्लियामेंट में जा चुके हैं आप, नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग आपने देखी है, आपको मालूम है कैसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वहाँ पे, वेरी क्लियर कि कोई सिक्योरिटी का बंदा भी इसमें इन्वॉल्व है। अजीत चौहान साहब बताएं। नहीं, उसमें से जो लोग अंदर गए थे उसमें से एक नौजवान हमारे महाराष्ट्र का भी है जी। और प्रदीप सर बिल्कुल बाहरी ताकतें, मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर है। बाहरी ताकतों का तो आने का सवाल ही नहीं है। पर आप देख सकते हैं, मतलब मैं ये दावा नहीं करूंगा क्योंकि वर्ल्ड जिसको मानता है, इजरायली सिक्योरिटी एजेंसीज को भी किस तरीके से धोखा दिया गया, ये फिलहाल ही हमने देखा है। तो मैं ये कहूंगा कि कॉन्फिडेंस में जरूर रहना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस में हम नहीं रहे। और जरूर बिल्कुल जो आप यहां पर जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास पर ये लोग अंदर गए, उनको मध्य प्रदेश के कुछ लोगों ने उनकी हेल्प की है, ये फिलहाल बेसिक जानकारी हाथ में आई है। आईबी के लोग, अभी कुछ देर पहले मैंने जानकारी ली, एक आला पुलिस ऑफिसर से मैं बात कर रहा था, एजेंसीज के लोग शिंदे जी के घर पे लातूर में, ये जो लड़का है उसके घर पे भी पूछताछ करने गए थे। मुझे लगता है कि कुछ बाकी हार्मफुल चीजें तो ये ले नहीं पाए, अपनी जूतों में इन्होंने कुछ छुपाया था, तो ये किसी की मदद से हो नहीं सकता। और ये हमारे ही लोग हैं, इसलिए ये यहां तक जा पाए ऐसा मुझे लगता है, वरना बाहर का कोई अननोन पर्सन इतने अंदर तक तो जाना इम्पॉसिबल है। फिर भी इस पूरे विषय में, क्योंकि संसद हमारे देश के सार्वभौमत्व का प्रतीक है, तो इस पर जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जहां से देश चलता है उस स्थल पर इस तरीके से। और मैं नौजवानों से भी मैं एक अपील करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से ये शहीद भगत सिंह का देश है, पर आज सत्ता हमारी है, हम सबकी है। आप हम में से ही चुने हुए लोग देश को चला रहे हैं, तो आप जरूर आंदोलन करें। प्रजातंत्र में हर किसी को आंदोलन का अधिकार है और आंदोलन होना भी चाहिए। हम भी आंदोलन करते करते ही अलग अलग विषयों पर यहां तक पहुंचे, तो आंदोलन का स्वागत है प्रजातंत्र में। पर इस तरीके से, जिस तरीके से देश बदनाम हो, व्यवस्था हमारी बदनाम हो, आपको क्या है कि आपका मुद्दा ही सरकार तक पहुंचाना है, तो उसके बहुत अलग अलग रास्ते हैं।
इस तरीके के आंदोलन का समर्थन नहीं हो सकता बजाय। लेकिन अजीत चौहान साहब, ये मुद्दा था क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। टुडे वाज द एनिवर्सरी ऑफ द अटैक ऑन पार्लियामेंट ऑन December 13, 2001। अब उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इनके बारे में बात हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने जो भी किया, लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया कि उस पार्लियामेंट अटैक के बारे में कोई बात ना करे। अजीत चौहान साहब, वजह सर ये बात आपने कह दी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, अगर यही बात हम कहें तो हम पर 100 सवाल खड़े हो जाते। मतलब हम मोदी जी की बात, हम देश की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं ये मोदी के भक्त हैं, हम कोई ऐसी बात कहेंगे तो ये लोग फिर और पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। तो इस पूरे विषय पे हर एंगल से जांच होनी चाहिए। और जो लेडीज थी, जिनको पकड़ा गया, जो महिला थी, और ये जो शिंदे नाम का युवक है महाराष्ट्र का, इन दोनों से जब एजेंसीज ने बातचीत की तो इन्होंने, हम किसी संगठन से संबंधित नहीं है और बेरोजगारों के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल ही बिना सर पैर की बातें इन लोगों के बयान में आई है। तो मुझे भी ये लगता है कि निस्संशय संसद के हमले की बरसी पर इस विषय की ज्यादा चर्चा ना हो, इसलिए ये किया गया क्या, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दुरुस्त बात। चौहान साहब, मगर जिस प्रकार से मोदी साहब का एक ब्रांड था नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म, अलग अलग चीज, इस पे अनबीटेबल रिकॉर्ड है, अनब्लेमिश्ड। लोगों का विश्वास इस पर भी है कि मोदी साहब है, देश सुरक्षित है और इंपॉर्टेंट। क्या आपको नहीं लगता कि यही मिथ को बस्ट करने के लिए आज के दिन किसी ने चुना गया? बिकॉज अलग अलग प्रदेशों से कुछ लोग आते हैं और एक साथ जिस प्रकार से काम, अगर उनका मांग भी था तो स्मोक चीज को लेकर अंदर जाने की जरूरत नहीं था, जहां के स्मोक एक मिसयूज करे और इस चीज को हाईलाइट करे कि थिंग्स आर नॉट सिक्योर। ये लोग अपने बात भी कर सकते थे, प्रोटेस्ट कर सकते थे, धरना, जैसे कल 2-3 दिन से लगातार धरना चल रहा है, जो पुराने पेंशन स्कीम का धरना चला, पवार साहब कुछ आंदोलन, अलग अलग आंदोलन, कांदे के विषय को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो अलग अलग आंदोलन चल ही रहा था। ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था कि जो एक ब्रांड बनाया था मोदी साहब ने, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इस विषय में क्या आपको नहीं लगता कि उसको बस्ट करने के लिए पूरा एक प्रयास चला है और एक वेरी कंसर्टेड अटेम्प्ट है, एक कूल एंड डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, ये ऐसे सादा सा प्रोटेस्ट नहीं है? चौहान साहब सर, मैं एक बात कहूंगा, अपनों ने धोखा दिया तो दिल पे लगती है, दुश्मन यलगार करके तो देखो। ये हमारे लोग थे, ये हमारे कुछ लोगों की मदद लेकर के यहां तक पहुंच गए। जिस तरीके से और जिस जज्बे के साथ हमारी एजेंसीज और एजेंसीज का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे देश के सारे सेनापति और उनके नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, देश की सुरक्षा यंत्रणा में कितने बदलाव हुए हैं ये आपने देख लिए हैं। कांग्रेस के जमाने में हर स्वतंत्रता दिन, हर प्रजासत्ताक दिवस पर, हर राष्ट्रीय दिवस पर हमें ये डर रहता था और ये न्यूज पे हेडलाइंस चलती थी कि 15 अगस्त 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर सुरक्षा के जायजे लिए गए और इस आतंकी संगठन ने धमकी दी है, उस आतंकी संगठन ने धमकी दी है। निश्चित रूप से देश में आज वैसा वातावरण नहीं है। अगर कोई इस विषय को लेकर के ब्रांड मोदी पर सवाल उठाता है तो उनसे मेरा एक आह्वान होगा कि भैया, आप देश के बारे में सोचिए। आप मोदी जी को बदनाम जितना करेंगे उतना देश की जनता का प्यार उन पे बढ़ता है, हम कार्यकर्ताओं ने देख लिया है। पर कुछ बातें होती है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, उन बातों पर किसी भी तरीके की राजनीति, हंसी मजाक या निचले स्तर पर टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरे नेता देश के प्रधानमंत्री है, मेरे नेता देश के गृह मंत्री है इसलिए, पर जिस तरीके का शेर मैंने पढ़ा वैसा कोई काम कर ले और फिर अंजाम देख ले, इसके पहले भी अंजाम देख चुके हैं। और इंटरनेशनली I think we've just lost Mr. Ajit Chauhan. He'll be back. phone call. But I'll tell you what,
I don't think this is a lone wolf attack, Pradeep ji. You're absolutely right. Sir, This is part of a conspiracy to try and undermine brand Modi. Brand definitely it's attack. Parliament, you have taken on the parliament. Protest के You अलग attacked पवार साहब Parliament. प्रोटेस्ट कर रहे थे. कल उद्धव ठाकरे जी सब संजय राउत वहां पर नागपुर में गए थे. They also had a protest. दिल्ली में अलग तो दिल्ली में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं साहब. Yes, yes. रामलीला मैदान के पास बिल्कुल, बिल्कुल. प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह पे हो रहे हैं. एंड इवन नियर जंतर मंतर वहां पर हो रहे हैं. Correct, लेकिन this is a deliberate attempt to try and undermine the brand Modi which has been built up over the last 10 years. That on security he has an impeccable record, which this particular incident will certainly force people to raise questions. What is this which is going on at the moment? Let's try and get Mr. Ajit Chavan back. Ajit Chavan साहब को अगर सर वापस लाएं तो अच्छा आप रहेगा. देखोगे बीजेपी एंटायर कैंपेन वाज दैट 2004 से लेके 2013 तक इंडिया वाज विटनेसिंग कंटिन्यूअस अटैक्स. Yes. They said what Israel is facing today, we were facing from 2004 to 2013. It is only after 2014 that all these things have stopped. All these things have stopped. This is what the BJP's talk was. BJP's Right, talk. I think we've got Mr. Chavan back. Yes, yes. जी चौहान साहब, ये लगता नहीं है कि ये इनका अकेले का प्लान था. मुझे लगता है इसके पीछे कोई और बड़ी फोर्स है सर. आप कुछ भी कर लें, ये हो सकता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हों, हो सकता है नक्सलवादी हो, माओवादी हो, लिबरल लेफ्ट हो, कोई भी हो, लेकिन हमला सीधा है, पार्लियामेंट पर नहीं है. अजीत चौहान साहब, ये हमला मोदी जी पर है, मोदी जी और अमित शाह जी पर है. अजीत चौहान साहब मान लीजिए, आप बताएं. हमारा तो ये मत है, आपका क्या है मुझे मालूम नहीं, बताएं. सर मुझे लगता है एजेंसी इसकी पूरी जांच करेगी और जी. प्राइम ऑफ एसी अगर हम इन लोगों के बयान सुने, इन लोगों का बैकग्राउंड चेक करें, जो अब तक जानकारी हाथ पे आई है, आपका कहना बिल्कुल सही है राजीव सर कि ये कठपुतलियां है. इस कठपुतली के पीछे, इन कठपुतलियों को चलाने वाले कौन लोग थे, इसकी भी जांच होगी. और मैं ये आह्वान करूंगा आपके माध्यम से पूरे देश में कि हम राजनीति जरूर करें, पर क्या राजनीति में हम इतना निचला स्तर पर क्यों आ जाते हैं, इसका भी हमें सोचना होगा कि देश की बदनामी, देश के प्रतीकों की बदनामी करने पर अगर हम उतारू हो जाए तो क्या हम सही मायने में भारतीय हैं. आप करो, आप मोदी जी से नफरत करो, आप भारतीय जनता पार्टी से नफरत करो, हम फिर भी आपसे प्यार करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, पर आप देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ, राष्ट्रीय सम्मानों के साथ, और जिन जगहों पर देश का इस तरीके का काम होता है कि जहां से सीधे देश का नाम जुड़ा हो, कृपया इतनी ऊंची राजनीति ना करें और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन प्रतीकों का इस्तेमाल ना करें. सर देखिए, आज देश में इतने अच्छी तरीके से सुशासन है और किसी जमाने में संसद पे हमला हो जाता था. क्या आज कोई आतंकी गुट सोच सकता है कि दिल्ली पे हमला करेगा? ये नहीं हो सकता. फिर भी इस तरीके की कुछ ओछी चीजें कर करके इंटरनेशनली इसको हेडलाइन बनाना और देश के प्रतीकों को, जब आप किसी को टक्कर नहीं दे सकते, जब आप किसी के साथ ताकत से स्पर्धा नहीं कर सकते, तो चाणक्य का यह कहना था कि आपके दुश्मन साजिशें करने लग जाएंगे. तो ये मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबला नहीं कर पाते ये लोग, तो इस तरीके की साजिशों पे उतारू आए हैं. ये हमने देखा है, ये भारतीय लोगों के लिए नया नहीं है. पाकिस्तान भी ऐसे ही करता था. आज क्या स्थिति है पाकिस्तान की, तो इन लोगों को जी 2004 से लेके बीजेपी always highlighted that 2004 से लेके 2013 तक we were witnessing continuous attacks. चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे वो गेटवे ब्लास्ट हो, चाहे दिल्ली में ब्लास्ट हो, चाहे गुजरात अहमदाबाद में ब्लास्ट हो, हर साल this is that's why people wanted to change. They believed Prime Minister Modi, they made him and they elect him second time and probably third time they might elect him again because इतना कॉन्फिडेंस है. ये एक बीजेपी का कहना था हमेशा. एंड सेकेंड वॉज 2-3 दिन पहले ही अमित शाह जी ने कश्मीर के बारे में बोला कि क्या स्टोन पेल्टर्स दिखते हैं क्या अभी? You don't see stone pelters and the whole country was very happy. Yes, we don't see stone pelting in Kashmir now.
वो जो जनाजे में 5-6 हजार लोग निकलते थे आतंकवाद के, वो भी कश्मीर में नहीं दिखाई दे रहे थे। तो अमित शाह जी जो ढंग से बोल रहे थे, पूरे देश ने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, बीजेपी हैज डन इट, वी डोंट सी स्टोन पेल्टर्स। और जो आतंकवाद के जनाजे में हजारों लोग जो घूमते थे, वो भी बंद हो गया। और अमित शाह जी ने बोला कि मैंने कैसे किया, उनको नौकरी बंद कर दी, फैमिलीज को आइडेंटिफाई, इट वॉज ग्रेट। तो जैसे बजाज साहब बोल रहे हैं, अ बिग कॉन्स्पिरेसी, डेट, टाइम, पीपल टू डिस्ट्रॉय द मिथ दैट बीजेपी कैन ओनली प्रोवाइड इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी की तरह हम देख रहे हैं चौहान साहब, इट इज डेफिनेटली अ बिग कॉन्स्पिरेसी। वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल को उठाने के लिए। आपके बाजू में ऐसे एक व्यक्ति बैठे हैं कि जिन्होंने एक दौर देखा था, राजू बजाज सर से आप पूछ सकते हैं, और मुझसे कई ज्यादा जानकारी उनको है कि किस तरीके से, आप कश्मीर की बात छोड़ दीजिए सर, कश्मीर तो आतंकियों का गढ़ था किसी जमाने में, और वहीं से वो सारे लोग इकट्ठा होकर के देश के खिलाफ साजिशें करते थे। देश की आर्थिक राजधानी में क्या होता था, बजाज सर आपको बता सकते हैं कि कितने बिल्डर्स डरे हुए होते थे, हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री डरी हुई थी, हमारे जर्नलिस्ट डरे हुए थे, और बिल्कुल आपके घर पर पे फोन करके बता करके आपको गोली मारी जाती थी। अगर पता है ये पैसे दे देगा तो हाथ पे ही गोली मारी जाती थी, पैर पे ही गोली मारी जाती थी। आप ऑफिस में नहीं है उस समय आकर के आपके ऑफिस में फायरिंग की जाती थी। ये कौन करवाता था, ये हम सबको मालूम है, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ दाऊद इब्राहिम। और उस दाऊद इब्राहिम के सपोर्टर 2-2, 3-3 मंत्री महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में होते थे कांग्रेस के राज में। ये मैं बिल्कुल खुले आम कह रहा हूं, क्योंकि इसके प्रूफ कई बार मिले हैं, और महाराष्ट्र के बजाज सर से लेके आपसे लेके तो सारे पत्रकारों को ये सारी चीजें पता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में किस तरीके से ये सारे सिंडिकेट्स बंद हो गए, कौन इस प्रदेश में पूरा की पूरा गांजा हो, अफीम हो, गुटखा हो, इसके नेक्सस कौन चलाता था, वो पैसा सारा कहाँ जाता था। सबसे बड़ी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री, रियल एस्टेट का मार्केट मुंबई में है, रियल एस्टेट मार्केट से कितना पैसा जमा होता था, इस रियल एस्टेट मार्केट में किसका पैसा लगता था। अगर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी और उनके लिए काम करने वाले गुंडे नहीं चाहे तो मुंबई में कोई प्रोजेक्ट खड़ा नहीं हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, पहली बार भी जब हमारी सरकार आई थी तो मेरे नेता, कल जन्मदिन था उनका, गोपीनाथ मुंडे जी ने, बजाज सर उसके साक्षी है जी, 450 गुंडों को मारा था मुंबई के सड़कों पर। जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आई, खुलेआम कत्लेआम मचा हुआ था। और ये सारी स्थिति थी इंटरनल सर, गुंडे इस व्यवस्था को चलाते थे। गुंडों की अनुमति के बिना किसी भी चीज का हो पाना देश की आर्थिक राजधानी में बहुत मुश्किल था। उस सबको अगर किसी ने तोड़ा तो वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। वो मुझे लगता है मुंबई से शुरू हुआ और पूरे देश में, आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, एक बहुत बड़े गुट ने भारत सरकार के सामने, मुझे इतनी खुशी हो रही थी सर वो दृश्य देखने में कि हमारे ही देशवासी, हमारे ही बांधव कांग्रेस की कुछ गलत नीतियों की वजह से, जिन्होंने हाथ में शस्त्र ले लिए थे सैकड़ों की तादाद में, जब वो सारे हमारे भारतीय बंधु भगिनी सारे हमारे फोर्सेस के सामने अपने हथियार डाल रहे थे। मैं ये मानता हूं कि ये मेरे नेता आदरणीय अमित शाह जी के विचारों की, उनकी सोच की जीत है, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देश में बदलाव क्या हुआ है, ये नए मतदाताओं को, नए लोगों को बताना भी जरूरी है सर कि इस देश में क्या था और आज की स्थिति क्या है। और ये लोग बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के काम के साथ में स्पर्धा नहीं कर सकते। तो इस तरीके की ओछी हरकतें करने वाले लोगों को सपोर्ट करते। अजीत चौहान साहब, जो कुछ आपने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई डिबेट हो ही नहीं सकती है। और आपको भी मालूम है कि वो नेता कौन थे, कौन है, आज भी हैं। दुख की बात यह है कि आज तक उनको सलाखों के पीछे नहीं डाला गया है। क्यों नहीं डाला गया मुझे मालूम नहीं है। शायद इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, शायद पुख्ता सबूत नहीं होंगे, शायद कोर्ट में स्टैंड करने वाले सबूत नहीं होंगे। लेकिन वैसे आपको भी मालूम है, प्रदीप जी को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कौन लोग थे, किन की बात कहाँ से होती थी, किन को कहा जाता था जब भी कोई बिल्डर तकलीफ में होता था, किस बड़े नेता के पास जाया करते थे कि भाई साहब उसको मना लो ना, इतना नहीं मैं इतना दे सकता हूँ।
तो उन्हीं के सामने बैठ करके आदमी फ़ोन करता था अपने ही ऑफिस से, और मैं खुलेआम बोलता हूँ मुख्यमंत्री के ऑफिस से, और तो और छोड़िए। जी बिल्कुल। और वहाँ बोलता था अच्छा इसके पास इतना नहीं है, इतना है, इतना ले ले, बहुत है। सामने की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे जाकर के अगले टर्म में जब मोदी जी वापस आएंगे 350 सीट लेकर के लोकसभा में, इन सब का भी हिसाब किताब होगा। जैसे वो कहते हैं ना, हम देखेंगे फैज साहब की जो गज़ल, ये लोग नज़म जो गाते हैं ज़्यादातर लेफ्ट वाले गाते हैं, मुझे लगता है कि ये फैज साहब की जो नज़म है ये इनके ऊपर ज़्यादा लागू होगी। हम देखेंगे एक एक चीज़ का हिसाब रखा जाएगा और वो होगा। लेकिन यहाँ पर अजीत चौहान साहब, सीधी सादी बात है, हमको मालूम है कि मोदी जी ने क्या किया है, हमें मालूम है अमित शाह जी ने क्या किया है, और मैं तो कभी संकोच नहीं करता बोलने के लिए कि अमित शाह ने और मोदी जी ने क्या किया है। लेकिन आज की तारीख में विपक्ष को, गैर भारतीय जनता पार्टी जितने भी संगठन हैं, उनको आज की तारीख में एक हथियार मिल गया आपके खिलाफ कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी अगर ऐसे ब्रीच हो सकती है तो बाकी देश का क्या होगा। अब इसको कैसे कॉम्बैट करेंगे आप, इससे कैसे आप लड़ेंगे, लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? जब तक के इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तब मालूम पड़ेगा कि इसमें असल में इसके पीछे किसका हाथ है, और किसका हाथ है हम लोग गैस कर सकते हैं। लेकिन तब तक क्या करेंगे सर, ये तो बताइए अजीत चौहान साहब। वजह से मुझे लगता है कि ये बच्चा जो हमारे महाराष्ट्र का ही था, और ये जो मैडम अंदर गई थी, देखिए क्या होता है कि देश की संसद है। अब मेरे पास भी कई लोग आते हैं, हमारे खास करके जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स, और वो कहते हैं कि भैया हमको संसद भवन जाना है, हमको राष्ट्रपति भवन जाना है, महाराष्ट्र सदन में रुकना है, तो आप यहाँ से किसी संसद महोदय की चिट्ठी ले। कई बार ये होता है और हम ये कराते थे, क्योंकि हम उन लोगों से हमारी पहचान होती है, वो हमारे शहर के बाशिंदे होते हैं, वो हमारी कॉलोनी में रहते हैं, या फिर हमारे किसी पहचान के तो वो हमारे पास आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहबान और मैडम जो होते हैं उनको पता भी नहीं होता, वो हम पर विश्वास करके उन बच्चों को या स्टूडेंट्स को पासेस देती है, किसी को भी पासेस देती है, और प्रेक्षा गैलरी में जाकर के हमारे देश के नागरिक जो है, आने वाले जो नौजवान है, युवक युवतियां है, वो संसद देखे, विधान भवन देखे, विधान परिषद देखे, ये हमको भी लगता है, तो उसके लिए उनको मदद की जाती है। तो जानने वाला कौन है, मतलब जिस तरीके से ये हुआ, ये कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि ये कोई बाहरी लोग नहीं थे, ये हमारे ही लोग थे, ये हमारे ही लोगों की मदद से, हमारे ही सांसद महोदय के सिफारिश पर, उनके लेटर पर उनको पासेस दिए गए थे, इसलिए ये यहाँ तक पहुंचे। वरना जिस तरीके की सिक्योरिटी अब संसद भवन में है, मुझे लगता है, हाँ, पर ये सवाल जरूर मेरे मन में है कि मार्शल्स वहां ऊपर होते हैं सर, और मार्शल्स का बड़ा बारीकी से ध्यान आप पर होता है। आपकी छोटी सी भी हलचल होती है तो मार्शल्स वो तुरंत पकड़ लेते हैं और वो पूछते हैं आप आगे क्यों जा रहे हैं, आप को क्या करना है। तो उन मार्शल्स की थोड़ी गलती मुझे यहाँ लगती है, जूते में अपने वो स्मोक बॉम्ब ले गए, कैसे ले गए, ये बहुत सारे सवाल इसमें है। पर मुझे ये लगता है बीच में तो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आ गया था सर, ये क्या हुआ? सॉरी टू इंटरप्ट यू। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में ये भी था कि जो गैर एमपी हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं हैं, और उनका इमीडिएट स्टाफ, जो 2 स्टाफ अलाउड होता है, उसके अलावा बाकी सबके जूते भी चेक किए जाते हैं। तो वो खत्म हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडे दिल्ली में। मुझे लगता है ये प्रेक्षा गैलरी से, मतलब जो जहां पर सिर्फ देखने के लिए लोग आते हैं, हाँ, पर लेकिन सर पार्लियामेंट परिसर में, संसद परिसर में एंटर करते वक्त आपको मेटल डिटेक्टर के थ्रू जाना पड़ता है, आपका पूरा बॉडी चेक होता है, और वहां पे जूते उतारे जाते हैं। मैं तो गया हूँ वहां पे। स्मोक बॉम्ब्स इस परिसर में आना, ये अपने आप में एक गंभीर सुरक्षा व्यवस्था की चूक मुझे भी लगती है। इसका मतलब क्या? और इसमें किसी का भी समर्थन करने, खुल के बोलिए ना सर, अजीत चौहान साहब, खुल के बोलिए। आप पत्रकार हैं, आप जर्नलिस्ट पहले हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बाद में हमारे लिए, बोलिए ना सर। आप तो स्पोक्स पर्सन भी नहीं है। बिल्कुल, मैं भी बता दूं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत जल्दी संसद में जाने वाले हैं, ये भी बता दूं सबको। यू आर लुकिंग एट अ फ्यूचर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी एंड परहैप्स अ फ्यूचर मिनिस्टर। जी बोलिए। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत। मैं शुभकामना नहीं दे रहा हूं, मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं।
मैं शुभकामनाएं हर एक को देता हूं, लेकिन दिस इज अ प्रेडिक्शन और मैं हमेशा सच बोलता हूं। और जो भी मेरी प्रेडिक्शन है, प्रदीप जी यहां पर बैठे हैं, मेरा रिकॉर्ड 100% रहा है, आज तक कभी गलत नहीं हुआ। जी बताएं। जब मैंने बोला था 2002 में आरकेबी शो के वक्त, सहारा में आरकेबी शो शुरू हुआ था कि वन डे मिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आप लोगों को क्या लगता है, हमने SMS मंगाए थे, 10,500 से ज़्यादा SMS आए, 10,000 से ऊपर लोगों ने कहा हम चाहते हैं कि मोदी जी बने। और हमारे कांग्रेस के जितने लोग थे, बाकी जितने पत्रकार थे, उन्होंने क्या गालियां दी। मेरे बहुत, मतलब मुझे लगता है कि मेरे हजारों पाप धुल गए उस दिन, इतनी बढ़िया गालियां पड़ी मुझे। आई स्टिल रिमेंबर, इट वॉज अराउंड द छठ पूजा थी 2002 के आसपास, तब आरकेबी शो शुरू हुआ था सहारा में इन 2002। तब हम लोगों ने ये पूछा था और ये कहा था कि मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। उस वक्त मोदी जी का नाम भी नहीं था प्रधानमंत्री पद के लिए। ठीक है सर, तो मैं अभी बोल रहा हूं, आप पार्लियामेंट मटेरियल हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे और दिल्ली में आप मंत्री बनेंगे। लिख के रख लीजिए, आज 13 दिसंबर है, बोल रहा हूं मैं आपको। क्या बात। लेकिन अब आप ये बताएं कि जहां तक के जो सिक्योरिटी वाले हैं उनमें से कोई सस्पेंड हुआ कि नहीं हुआ, कब होगा? ये सस्पेंशन क्राइम है सर, इट्स अ क्राइम। कैसे जाने दिया आपने अंदर लोगों को? हरी चौहान साहब बताएं। राजू सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। स्मोक बॉम्ब, मतलब वो बच्चा अंदर चला गया, वो कूदा, उसके मन में तो जाकर कोई सिक्योरिटी जांच नहीं हो सकती, कौन मन में क्या सोचता है। पर ये स्मोक बॉम्ब इस तरीके से संसद परिसर में जाना अपने अपने सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक है और बिल्कुल इस पर कड़ी कार्रवाई हो। पर मैं फिर से एक बात कहता हूं कि यही दिन चुना गया, ये क्यों चुना गया, ये लोग कौन है, ये किसके इशारे पर यहाँ आए थे, मध्य प्रदेश से किसने इन लोगों को मदद की, इन लोगों को मैसूर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो सिफारिश पत्र दिया वो किसके कहने पर दिया, ये सारा जांच का विषय है और इसकी जांच भी होगी, कड़ी जांच होगी। और संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को आने वाले दिनों में और कड़ा किया जाएगा। ये तो व्यवस्थाओं ने भी कहा है, हमारे आला नेताओं ने भी कहा है, मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए। चौहान साहब, द सेलिब्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कंफर्म कर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के लिए, दैट जो एक जबरदस्त विक्ट्री था, बीजेपी वाज सेलिब्रेटिंग ऑल ओवर द कंट्री, यू आर सेलिब्रेटिंग द 3 CMs, द न्यू CMs, और जिस प्रकार से आपने एक फंटास्टिक समीकरण जो बिठा दिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अलग अलग कास्ट पे जो भी करना है, समीकरण जमल, तो सेलिब्रेशन सब जगह चल रहा था। स्पेशली सेलिब्रेशन चल रहा था, मोदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को थैंक किया, अमित शाह जी ने सुप्रीम कोर्ट को थैंक किया कि जो नया कश्मीर का बिल्स आप इंट्रोड्यूस किए एंड दैट आल्सो ओवरवेलमिंगली सपोर्ट मिले। तो ये सब जो उत्साह और एक विजय का वातावरण था, सब ये इंसिडेंट से एक्लिप्स हो गया, टोटल ग्रहण लग गया इसमें। कैसे देखते हो आप इसको? सर, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो देश के बारे में सोचता है, देश के लिए विचार करता है, देश के प्रतीकों का सम्मान करता है, उस आदमी को इस बात का बुरा लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। और अगर ये सब करने के पीछे ये सारे कारण होंगे तो ये करने वाले लोग, मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ही छोटी सोच के और ओछे लोग हैं कि अपनी राजनीतिक मनीषाएं पूरी करने के लिए अगर आप देश के प्रतीकों को भी नहीं छोड़ते, देश के प्रतीक, देखिए संसद पर हमला हुआ था, वो तो आतंकी थे, वो तो किसी और देश से आए थे, उनकी साजिश थी हमारे एकता पर, अखंडता पर, सार्वभौमत्व पर हमला करना उनकी साजिश थी। आज उनकी उतनी ताकत नहीं है, जब मेरे नेता आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री है, कि वो इस तरीके का कुछ कर पाए। पर देश के अंदर के कुछ लोग अगर ऐसी ताकतों को सपोर्ट करके इसी दिन इसी वक्त ऐसी कुछ हरकतें करते हैं तो ये बड़ा खेदजनक है प्रदीप सर। ये इसको मैं खेदजनक कहूंगा और इसको ओछी राजनीति कहूंगा। ये सही बात नहीं है। राजनीति होती रहेगी, दलों के बीच में आपसी मनमुटाव होते रहेंगे, डिबेट्स होते रहेंगे, पर इस तरीके की, इसको अतिरेकी मानसिकता कहेंगे, ऐसे लोगों को सपोर्ट करके अपनी राजनीतिक छवि चमकाना, ये बड़ी गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए चौहान साहब, किसी की पार्टी की तरफ। आपका मेन जो मुद्दा है, पीपल बिलीव एंड एवरी पॉलिटिकल पंडित बिलीव, हिंदुत्व बिगेस्ट,
मोदी साहब, जेपी नड्डा, अमित शाह जी थकते नहीं है सबको याद दिलाने के लिए कि जनवरी 22 12:22 राम मंदिर का पुनर्निर्माण, प्राण प्रतिष्ठान नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के हाथों होने वाला है। ये 550 साल के बाद आने वाले बहुत बड़ा इवेंट है, जबरदस्त इवेंट है। और एस्ट्रोलॉजर्स ने भी हमारे प्रोग्राम बजाज साहब ने बुलाए तो बोले कि ये जो मुहूर्त है वो स्वयं भगवान राम ने जिस प्रकार से कहा, इतना जबरदस्त मुहूर्त है, फंटास्टिक, ऐसे मुहूर्त मिलेगा नहीं, ऐसे ग्लोरियस मुहूर्त है। तो हिंदुत्व आपका कैंपेन है। फिर मोदी साहब कहा कि इसके बाद मथुरा बाकी है, मथुरा का भव्य निर्माण के बारे में बात कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि कैसे काशी विश्वनाथ को ठीक भव्य बना दिया, उज्जैन महाकाल को भव्य बना दिया, केदारनाथ, अयोध्या उसका। तो क्या जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठा लिया, क्या हिंदुत्व कैसे आप उसके लिए तैयार है कि नहीं कि ऐसे कुछ और भी प्लानिंग हो सकता है इस विषय में जहां आपके हिंदुत्व टैग को कुछ ठेस पहुंचे? बोलिए अजीत चौहान। सर ये आज से नहीं, हम पिछले 750 सालों से ये सपना देख रहे हैं और मैं शत नमन करता हूं उन वीरों को। एक मां थी हमारी, उस मां ने हमारी आंखों में ये सपना दिया था। जिस दिन बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर ध्वस्त हुआ था तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां राजमाता जिजाऊ मां साहब भगवान के सामने बैठी थी 3 दिन तक भूखी और प्यासी, और उन्होंने अपने हाथ की चूड़ियां मराठों पर फेंक कर कहा था कि आपके कुलदेवत को ध्वस्त किया गया और आप स्वस्थ बैठे। तो पूरे भारतवर्ष से एक ही माई का लाल था, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और उन्होंने औरंगजेब को खत लिखा था कि तुझे ये भोगना पड़ेगा, तूने हमारे कुलदेवत के मंदिर को ध्वस्त किया है। तो काशी मथुरा देखिए, हिंदुस्तान की 90% ऐतिहासिक मस्जिदों को आप अगर खुदवाएंगे तो उसके नीचे आपको मंदिर ही मिलेंगे। हम सिर्फ इतना कहते थे कि जो हमारे लिए जिस तरीके से और किसी धर्म के लिए सबके लिए जैसे वेटिकन सिटी है, मक्का है, मदीना है, जेरूसलम है, उसी तरीके से काशी मथुरा ये हमारे लिए हमारे सर्वोच्च धर्म के स्थल है। और ये सपना आंख में लेकर के पिछले 750 सालों से इसकी मुक्ति के लिए हिंदुओं का संघर्ष अविरत जारी था। वो 50% पूरा हुआ। आपने जो मंदिर अब देख रहे हैं अभी, वो मंदिर काशी विश्वनाथ का और मथुरा का, जब मथुरा के मंदिर में केशव देवराय भगवान की मंदिर को सोने के रेलिंग्स लगाए गए तो 2500 बुंदेलों को काट दिया था औरंगजेब ने। ये इस देश का इतिहास है सर। और हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इतने वोट्स मिले हैं, ये क्या सिर्फ हिंदुओं ने दिए वोट्स नहीं है। मैं ये मानता हूं कि देश की मातृशक्ति माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ी है सर, तब इतनी रिकॉर्ड तो जीत हमको मिल रही है। और हम गलत कुछ नहीं कर रहे सर। हम अगर सही की बात करें, अगर हम हिंदुओं के हक की बात करें तो हम जातिवादी कैसे हो जाते हैं सर इस देश में? मुझे बताइए। जो 750 साल से गुलामी की मानसिकता में है जो लोग, हमसे इतना कह रहे हैं कि हमारे सर्वोच्च जो तीर्थ क्षेत्र है उनको हमको मुक्त कराना है। और वो सपना राजमाता जिजाऊ ने हमको दिया था, शिवाजी महाराज उसके लिए लड़े, बाजीराव पेशवा उसके लिए लड़े, हमारे महाराष्ट्र के सिंधिया होलकर उसके लिए लड़े, हमारे हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उसके लिए रण क्षेत्र में बलिदान दिया है। और ये पापी औरंगजेब है और परदेशी आक्रांदा है, उन्होंने सोमनाथ से लेके मतलब देश के किसी भी कोने से लेके श्रीशैलम से लेके किसी भी कोने तक हमारे मंदिरों को, हमारी संस्कृति को ध्वस्त करना साहब नहीं छोड़ा। और सिर्फ हम आजादी के बाद अकेली भारतीय जनता पार्टी स्थापना के बाद 80 के दशक से हम ये कह रहे थे कि हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है बस हमको उनको मुक्त कराना है। तो इसमें मुझे प्रदीप सर लगता है कि कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि हिंदू वो है जो इस देश में रहता है, इस धरातल पे रहने वाला हर कोई हिंदू है। हमारी उपासना पद्धति अलग है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई बुद्ध विहार में जाता है, पर हम सभी हिंदू है क्योंकि इस भारत माँ के हम सारे सुपुत्र हैं। और मुझे लगता है कि ये बात अब दूसरे धर्मों के मेरे भाइयों के भी ध्यान में आ रही है कि अगर हिंदुओं के सबसे प्राण प्रिय भगवानों की जन्मभूमि, उनके मंदिर की भूमि जैसे काशी और मथुरा हमारे लिए सर्वोच्च प्राण प्रिय है, मतलब हम किसी और धर्म की भूमि को
हथियार लेंगे, उस पर हमारे प्रार्थना स्थली बना देंगे। ये तो अन्याय हुआ था, ये दूसरे धर्म के हमारे भाइयों के भी ध्यान में आ रहा है। और बस इतनी सी बात है, कांग्रेस ने इतने इतने साल हिंदुओं को दबा के रखा। इस देश में हिंदू होना, ये कहना एक तरीके से शर्म की बात होने लगी थी। इस तरीके का वातावरण इस देश में कांग्रेस के समय में था। भारतीय जनता पार्टी ने, संघ परिवार ने बस उतना ही किया कि गर्व से कहो हम हिंदू है। ये सारे हिंदुओं को अपने हिंदू होने की अभिमान के क्षण की याद दिला दी, बस इतना ही है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि भगवान के, जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा का जो स्थान होता है, वहां की कालगणना हमारी कालगणना में बड़ा अंतर होता है। तो भगवान ने कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, ये जो अन्याय अत्याचार है, इसका भी हिसाब कर करके रखा होगा। बस सिर्फ फर्क इतना था कि उसके लिए जो दो भगवान के सेवक हैं, उन सेवकों का प्रधान सेवक बनना और देश का मुखिया बनना, इसका ही वेट हो रहा था। और इस पूरे विषय में मैं ये मानता हूं कि जिन जिन लोगों ने, जिन कार सेवकों ने बलिदान दिया, और ये कोई धर्म की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये हमारे अस्तित्व की, हमारे स्वाभिमान की, और इस मिट्टी की। जैसे आप हमारे बाजू का देश है पाकिस्तान देख लीजिए, उन्होंने अपनी जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, वो पूरी तरीके से हिस्ट्री उन्होंने मिटा दी है। और वो सऊदी कंट्रीज की तरफ हर चीज के लिए मुंह उठा करके देखते हैं। तो मुझे यह लगता है कि हमारे देश की किसी भी तरीके की हिस्ट्री हो, किसी भी तरीके का इतिहास हो, वो इतिहास, वो धरोहर, वो हमको लोगों के सामने लानी है। वही लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और लोगों को अच्छा लग रहा है। हाजी चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलते चलते दर्शकों को ये भी बता दें कि जो प्राण प्रतिष्ठान पूजा होगी रामलला की मूर्ति की 22 जनवरी 12:22 को अमृत योग है सर। जी, हम भी होंगे सर, अकेले आप ही नहीं होंगे, हम भी वही होंगे। तो उसके पुजारी जो हैं वो उसी परिवार के वंशज हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया था जी, उसी परिवार से। चलिए, थैंक यू सो मच सर, एंड लवली टू मीट यू अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप आते रहें। आई नो यू बिकम अ बिग मैन नाउ, यू आर एंड यू विल गेट बिगर, लेकिन फिर भी हाजी चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, सो नाइस ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच, आपकी शुभकामनाएं मिल जाए। प्रदीप सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टू सी यू बैक। थैंक यू वेरी मच सर। हर हर महादेव, नमस्कार। हर हर महादेव। Right? So, the BJP should be worried, in my opinion, very frankly speaking. They don't seem to be worried. So things are not going to be easy. Things are not going to be easy, though it seems to be on the surface it looks to be a small event. This has a deep connections and ramifications. It's not going to be so easy. This is definitely Sir, the point is when you have built up your entire persona on a brand of indomitable strength. Yes, sir. All that needs to be done is to find a small weakness. Exactly. And you're done. Bilkul. That's exactly what seems to have happened today. And the Congress is exploiting it to the tilt. Totally. But anybody should. Let's be very clear. हम नहीं पूछ रहे क्या? अकेली कांग्रेस पूछ रही, हम भी तो सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या हो गया भाई? राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के आप तो सबसे सर्वोपरि हैं, सबसे आगे हैं, तो ये क्या हो गया? इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के भरत सिंह जी।